So we're talking about a POP and OOP. So POP is basically called as a procedure-oriented programming, and OOP is called as a object-oriented programming. In procedure-oriented programming, if you have observed in C language, at the top we're having a definition of the void main function, and just below to it, we're having a definitions for the different functions. Like suppose we're taking the example of factorial and a power. So at the top you will find definition of a main function, and just below to it you are having a different function definitions for the factorial and power function. Okay, but now in object oriented, suppose you're talking about object oriented programming. So in object oriented programming, our complete focus is over the data, not over the function. Here whatever we're talking, that is only regarding the data, because data is very important to us. Okay, and second thing is in object oriented programming is that just like a POP, main is at the top, and then you are having a different function definitions. But in object oriented programming, suppose you are going to remember the program of a structure. So in structure program, what we are doing, at the start you are having a structure definition. Okay, and just after structure definition you are having a definition of the main function. In the same way, in OOP, at the start you are having a class definition, and just below to class definition you will have a different function definitions, and at the last you are having a main function. So how is the case in the OOP? सबसे ऊपर क्या रहेगा, हमारा क्लास का डेफिनेशन रहेगा, उसके बाद हमारे फंक्शंस के डेफिनेशंस रहेंगे, और उसके बाद हमारा मेन का डेफिनेशन रहेगा. लेकिन पीओपी में कैसे हो रहा है, सबसे पहले मेन, ओके, और उसके बाद हमारे अलग अलग फंक्शन के डिफिनेशन, जितने फंक्शन आपने आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किए होंगे. लेकिन ओओपी में कैसे हो रहा है, जैसे स्ट्रक्चर का डेफिनेशन रहता है वैसे क्लास का डेफिनेशन, उसके बाद फंक्शन के डेफिनेशन, और उसके बाद मेन का डेफिनेशन. इसीलिए पीओपी में कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, और ओओपी में कहते हैं बॉटम अप. अब टॉप टू बॉटम क्यों? बिकॉज यू नो दैट आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ मेन. हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन से होता है. अब सी में तो मेन सबसे ऊपर रहता है, इसलिए कहां से चालू हो रहा है, टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं. लेकिन ओओपी में क्या है, मेन सबसे नीचे है और क्लास और फंक्शन ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो होता है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो होता है. माना मेन कहाँ पे सबसे नीचे है, तो हम नीचे से ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं. लेकिन सी में क्या हो रहा है, हम ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन के लिए आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग you will have a bottom up approach. Bottom up approach means हमारा मेन सबसे नीचे है और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए. लेकिन पीओपी में क्या हो रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं हम लोग. अब टॉप डाउन में क्या हो रहा है कि मेन हमारा ऊपर है एंड एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द मेन. सो दैट्स हाउ वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन. देन सेकंड डिफरेंस इन ओओपी इज दैट प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स. तो ये ओओपी में जो हमारा बेसिक एंटिटी है जिसको हम डेटा कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डेटा. So that data will be represented in the form of the object. जैसे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर में, वैसे ही क्लास का जो वेरिएबल बनाएंगे तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. You remember the structure. For structure, we are going to create the variables that are called as the structure variables. In the same way, हम यहाँ पे जो क्लास डिफाइन करेंगे तो क्लास का जो वेरिएबल रहेगा, क्लास वेरिएबल, that class variable is called as an object. So here in OOP, programming is divided into the parts that are called as the objects. But in POP, program is divided into small parts called as a function. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, because provided is divided, program is divided into the small functions. Okay, small procedures. But in OOP, the program is divided in the term of objects. Then third difference, in OOP, importance is given to the data rather than procedure or functions, because it works as a real world problem. यहाँ पे क्या आ रहा है, ओओपी में इंपॉर्टेंस किसको दिया है, हमने डेटा को दिया है, ना कि फंक्शन या प्रोसीजर को, क्योंकि हम ओओपी के थ्रू क्या इंप्लीमेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. बट इन पीओपी इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज गिवन टू, इज नॉट गिवन टू द डेटा बट टू द फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी डन. यहाँ पे पीओपी में किसको इंपॉर्टेंस दिया है, डेटा को नहीं दिया है, लेकिन किसको इंपॉर्टेंस दिया है, फंक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया है, और जो भी एक्शंस परफॉर्म करना है to that actions, the importance is given in POP. पहला वाला क्या था, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि एग्जीक्यूशन नीचे से ऊपर जा रहा है. पीओपी में क्या है, टॉप डाउन है, क्योंकि मेन टॉप में है, बाकी फंक्शन नीचे है, इसलिए टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है. यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डिवाइड हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डिवाइड हो गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल units that are called as the programs, that are called as the functions or the procedures.
यहाँ पे OOP में importance is given to the data. Here in POP the importance is given to the functions. Okay. Then in OOP objects can move and communicate with each other through member functions. अभी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना है तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओनली। मीन जैसे अगर हमारा S1 है पहला ऑब्जेक्ट और S2 है दूसरा ऑब्जेक्ट, और S1 का डेटा S2 में कॉपी करना है, ओके, सो फॉर दैट वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ मेंबर फंक्शंस। But in POP, data can move freely from function to function in the system. अब हमने C में देखा था, अगर हम स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करते हैं तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या हो रहा है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं। दैट आल्सो वी कैन डू इन OOP, बट इन POP इट इज वेरी इजियर। Data to move the data is the data can be moved easily from one function to another function in POP. Then next difference, in OOP data cannot move easily from function to function. It can be kept public or private, so we can control the access of the data. So here in OOP we can provide the security toward data. Okay, here what is the thing, in OOP we are going to secure our data. That's why we are not in a mode or we are not in a position to move our data freely from one function to another function. But in POP there is no consideration regarding the security, so that's why most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. अब यहाँ पे भी फंक्शन टू फंक्शन कौन सा डेटा जा रहा है, द डेटा दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल डेटा, माना मेन के बाहर जो हम डेटा या मेन के बाहर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स। आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने देखा था ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। ओके, याद आ रहा है, याद आ रहा होगा आपको, हमने ये देखे थे स्टोरेज स्पेसिफायर्स, ऑटो देखा था, उसके बाद रजिस्टर देखा था, उसके बाद स्टैटिक देखा था और एक्सटर्न देखा था। तो एक्सटर्न इज एज इक्विवेलेंट टू ग्लोबल डेटा, means using extern you can declare the variable outside of the main and those variables can be used by any function, क्योंकि वो कैसे है, ग्लोबल है, मेन के बाहर है, so that's why they can be accessible to any function in POP. But in OOP our data could be the public or private, so that's why that cannot be moved freely from one function to another function. Then next difference, OOP provides data hiding, so provide more security. Like in POP में there is no proper way for hiding data, so it is less secure, and OOP is more secure. In OOP you can find the different concepts like overloading is possible in the form of function overloading and operator overloading. There is a concept like function and operator overloading in OOPs, but there is no concept like overloading in POP language. Then example of OOPs are, अब OOPs में माना ये कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, OOPs में तो C++ आता है, जावा आता है, VB.NET आता है, C#.NET आता है, सिमुला आता है, और भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे OOP में। वही POP में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, C आती है, VB आता है, Fortran आता है, Pascal आता है। So these are the examples of the procedure oriented programming and these are the examples of the object oriented programming. So this is the question and that could always ask in examination for the 4 marks. Okay, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप सोचोगे सर अभी तो थ्योरी एग्जाम होगा नहीं तो फिर कैसे, तो आपके जो एमसीक्यूज रहेंगे तो एमसीक्यूज में ऐसे आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज ए बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, डायगोनल अप्रोच, या फिर और कौन सा ऐसा बॉटम टॉप डाउन अप्रोच ऐसा, तो फिर आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, फिर आएगा कुछ तो भी प्रोसीजर्स, या फिर नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस, तो आपको फिर पता रहना चाहिए। तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। इन पीओपी वी कैन डू द ओवरलोडिंग, ट्रू और फॉल्स, तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, फिर डोंट नो है, ऐसा कुछ तो भी एमसीक्यू आ जाएगा। या फिर ऐसे 4 एग्जांपल दिए हुए रहेंगे, करेक्ट C++ रहेगा, फिर VB रहेगा, फोरट्रॉन रहेगा, पास्कल रहेगा, एंड यू हैव टू चूज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। तो ये सब चीजें हमें पता रहनी चाहिए। सो दैट टाइम अगर आपने ये वाला ही देख लिया एक क्वेश्चन, तो इसमें से कम 5-6 एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, that is the differentiate between the object oriented programming and the procedure oriented programming. Okay, so the difference is just in front of you. So once again I am going to repeat here, the bottom up approach, bottom up माना मेन नीचे बाकी सब ऊपर, और यहाँ पे टॉप डाउन माना मेन ऊपर बाकी सब फंक्शन डेफिनेशन जो भी चीजें है सब नीचे। ओओपी में क्या होता है, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, पीओपी में प्रोग्राम स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड होता है। ओके, ओओपी में क्या है, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा, बट इन पीओपी द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फंक्शन। In OOP, objects can move and communicate
with each other with the help of the functions. But here in POP, data can move freely from one function to another function. Here in OOP data cannot move freely क्योंकि यहाँ पे कैसा डेटा सिक्योर है, लेकिन यहाँ पे POP में जो ग्लोबल डेटा रहता है that we can move freely from one function to another function. OOP provides data hiding, सिक्योर है यहाँ पे इसलिए डेटा हाइडिंग हो रहा है, यहाँ पे डेटा हाइडिंग नहीं होता बिकॉज इट इज लेस सिक्योर. यहाँ पे ओवरलोडिंग जैसे कंसेप्ट है, POP में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है. और ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं. सो दिस इज the difference between the OOP and the POP language. Okay, now this is another question that where do you find the applications of object-oriented programming. Okay, so normally real time systems जो है, जो भी real time system है, in that real time means using the whatever the applications you are implementing with the help of C++ language, so that applications you can use for the various domains. So these are not the applications, but you can say that these are the domains, and in these domains you can use the C++ language for the implementation of the different problems. Like we can use the C++ to implement the real-time systems. We can use C++ to implement the simulation and modeling problems. जो सिमुलेशन रहते हैं ना, आपने देखा होगा वो, अभी आप शायद हाँ इस सेमेस्टर में पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके लिए जो मासम यूज करते हैं, तो मासम इज अ सिमुलेटर, इमुलेटर बोलते हैं उसको. तो वो भी, तो उसका जो वो जो देखोगे आप मासम, वो भी यूजिंग C++ से इम्प्लीमेंट किया गया है. ओके, artificial intelligence and expert system that also we can implement with the help of C++. Object oriented databases that we can do with the help of C++. Neural network and parallel programming C++ से कर सकते हैं. डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. अभी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, ऑफिस ऑटोमेशन यानी जो फार्मास्यूटिकल के लिए हम बना रहे हैं, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, या फिर बैंक के लिए बना रहे हैं, तो उनका जो ऑटोमेशन है, that also we can do with the help of this by implementing the C++ program. Then that can be implemented using the C++ program. CAD CAM सभी आप लोगों को पता है कि CAD CAM से हम बिल्डिंग के, तो ये जो CAD CAM जो सिस्टम है, that also implemented with the help of C++ program. Compiler construction जो compiler है, C का compiler है, C, तो जो भी बाकी compiler होंगे, that also implemented using the C++ program. अब ये हो गया बहुत हायर लेवल पे. अब ऐसे मत सोचना कि ये हम हमारे क्लास में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट. अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग बना सकते हो. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो सी से, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सी लैंग्वेज. तो क्या हम लोग बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? फॉर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ओनली आफ्टर दैट इट इज पॉसिबल. सिस्टम एप्लीकेशन है, डेवलपिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. सो ऑल दिस थिंग्स दैट वी कैन इम्प्लीमेंट, or these are the applications of the C++ language. Means using C++ we can implement all these kind of applications using C++. That is object oriented programming. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा भी आता है, C++ भी आता है, सिमुला भी आता है. तो इसमें से बहुत सारी चीजें जावा से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर C++ से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो सपोज आपको MCQ आ सकता है कि लाइक चूज द इनकरेक्ट application of object oriented programming from the following options. तो यहाँ पे 3 करेक्ट रहेंगे, एक इनकरेक्ट रहेगा. तो आपको चूज देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा इनकरेक्ट है करके. तो ऐसा भी क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, या फिर थ्योरेटिकल रहा तो उसमें तो ये 100% क्वेश्चन आता ही है. ये भी 4 मार्क के लिए 100% कम आता ही है, और ये भी 4 मार्क के लिए 100% आता ही है, और ऊपर वाला जो है ये भी 4 मार्क के लिए आता ही है 100%. ओके, हो गया. इसमें कोई प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में या फिर एनलिस्ट, N8 और 4 एप्लीकेशंस में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? Okay, now we will see the concepts. क्वेश्चन तो ऐसे रहता है, डिस्क्राइब एनी 4 concepts of object oriented programming. Okay, तो कभी कभी ऐसे भी आता है डिस्क्राइब एनी 4, या फिर आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट concepts of object oriented programming. So that time it is your responsibility that you at least mention the 8 properties over there or 8 concepts over there. अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो भी आपको 8 वहां पे एटलीस्ट लिखना ही है. So let's see one by one what is object. Okay, so here are the different concepts of object oriented programming. What are those concepts? First is object,
then second is a class, then third is a inheritance, then polymorphism, then dynamic binding, message passing, data abstraction, and encapsulation. Okay, so let's see it one by one. What is object? So objects are the basic runtime entities in an object-oriented system. So जैसे कि like we have seen the program over the structure. So suppose you are going to implement the structure for a student or structure for an employee or structure for a patient. So that time you have created structure variables, like for student you have created like S1 or S2, or for patient you have created like P1 or P2, or suppose you are talking about your class, like a class of third sem. So your class is represented by your CR. Your class is represented by the CR, that is a class representative, and for a class you are having a single CR over there. Okay, so class here in C++ program is basically depend upon a class, means whatever the programs are there in C++ that all are implemented using a class. So class should be represented by someone, so that class is represented by objects. जैसे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन द सेम वे क्लास आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स. मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. Okay, so what is, sometimes there will be the question define objects, so that time you can say that the objects are the basic runtime entities of a class. Object क्या है? Objects are the basic runtime entities in an object-oriented system. They may also represent user-defined data such as vectors, time, and its list. Program objects should be chosen such that they match closely with the real-world object. The object has state, behavior, responsibility, identity, which represents the ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को क्या रहता है, जैसे मैंने बोला कि लाइक अगर आपने स्टूडेंट करके क्लास बनाया तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? S1 रहेगा. लेकिन ये नाम भी कैसे देने हैं, दैट शुड बी रिलेवेंट टू द क्लास. जैसे आपने बनाया क्लास स्टूडेंट और उसको नाम क्या दे रहे हो? E1 दे रहे हो, E2 दे रहे हो, सो दे आर नॉट रिलेवेंट. ओके, सो व्हाट आर द नेम्स यू आर गिविंग टू द ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी somewhat similar to your class. So what is the object? Object means it is going to represent the class. Objects are the basic runtime entities. Objects are live entities. Means objects क्या करता है, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करता है. ऑब्जेक्ट क्या करता है, आप जो भी क्लास बनाओगे, बिकॉज क्लास डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. क्लास का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. क्लास डोंट हैव अ मेमोरी. जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि लाइक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हमने S1 करके वेरिएबल बनाया, तो माइट बी S1 हैव अ मेमोरी ऑफ 38 बाइट्स. ओके, बट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट का, दैट डोंट हैव एनी मेमोरी, दैट डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. इन द सेम वे, suppose you are going to concentrate over these two concepts, that is the objects and the classes. So classes don't have a physical existence. It is just like a blueprint of an object. क्लास कैसा है? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे हम घर बनाते तो घर बनाने के पहले क्या बनाते, उसका ब्लूप्रिंट बनाते. तो क्या जो हमारा पेपर पे रहेगा घर बना हुआ, तो उसको हम अपना हमारा घर कहेंगे क्या? नहीं. whenever you are whatever the constructions you are going to do, that is on your paper. So that time you can say that my home, my whatever the house or whatever the building is there, that currently not exist, but that is a blueprint that is available only on the paper. That is currently virtually available, you can say. That is only virtually available. Okay, so class don't have a physical existence, but the objects have a, objects are called as the basic runtime entities. They are having a existence, they are having a memory allocated for them. Okay, so what is the definition of a class? Class is like a blueprint of an object. This does not actually define the data, but it does define what the class name means. That is what the object of the class will consist of and what operations can be performed on some object. It is also called as user defined data type. Class को हम क्या बोलते हैं? Class को represent करने वाला कौन है? Object है. Class is just like a blueprint of a object. Class क्या है? Blueprint of object है. लेकिन class में और भी चीजें रहती है कि कौन सी चीजें रहती है कि भाई जो object है, तो using that object what operations we have to perform. So that things are mentioned in a class. That things are mentioned in a class.
जैसे अगर हमने बनाया एम्प्लॉय बनाया सपोज हमने, और एम्प्लॉय का E1 हमने बनाया, जैसे अगर आप बात करते कि आपकी बात करते, चलो एक रियल प्रॉब्लम लेते हैं कि लाइक आपका क्लास है और क्लास में स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है या 63 स्टूडेंट्स है। ओके, अब 63 स्टूडेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? 63 स्टूडेंट्स के लिए उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए एक फंक्शन हो गया टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टू फिल एग्जाम फॉर्म, टू फिल कोई तो भी और फॉर्म होगा, फिर आपको टू गिव एग्जाम। ओके, तो ऐसे अलग 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 फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन रहेगा? अब आपके क्लास में 60 बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे रहेंगे, 60 है या कितने हैं, तो पहला बच्चा आएगा तो पहला भी बच्चा क्या करेगा, S1 डॉट एग्जाम फॉर्म, S1 डॉट टू फिल एग्जाम फॉर्म करके फंक्शन एक्सेस होगा, S1 डॉट टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो वाला होगा एक्सेस, S1 डॉट टू गिव एग्जाम, S1 डॉट टू सी रिजल्ट। तो ये 4 फंक्शन हो गए, और ये 4 फंक्शन को कौन एक्सेस कर रहा है? S1 कर रहा है। इसी तरह से S2 भी एक्सेस करेगा, S3 भी एक्सेस करेगा, S4 भी एक्सेस करेगा। तो ये जो 4 फंक्शन है कहां पे मेंशन रहेंगे? दैट ऑल आर मेंशन इन दिस क्लास, कि भाई कौन कौन से फंक्शंस हमको इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंटेशन कहां पे रहेगा? क्लास के बाहर। और उनका फंक्शन कॉलिंग कहां पे रहेगा? मेन के अंदर। समझ में आ रही चीजें? This is a theoretical part, so that's why. So this is your class. Okay. Inside the class, you have function declarations. Okay. यहाँ पे आपका ये भी आ जाएंगे, क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है। डेटा रिक्वायरमेंट। ओके, ये क्लास होने के बाद यहाँ पे आएगा आपके फंक्शन डेफिनेशंस। और इसके बाद अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन कितने भी रह सकते हैं, अगर आपका पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ऑल योर फंक्शन डेफिनेशन, एंड देन यू आर हैविंग अ वाइड मेन। और वाइड मेन के बाद देन यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन for class, okay, and then function calls. So this is the general structure of the C++ program, you can say. This is the class, this is called as a class definition. In class definition, you are going to declare your all data, whatever is required over there, and then function declarations. Like suppose we're talking about your class. So here is a class name as a student. So what data you require here? You require name of a student, branch of a student, enrollment number, then you need gender, DOB, and whatever the more data you require there. Actually, that is going to increase the size of a program, that is going to increase the number of lines of the program, because we have to read that much data. But you know that what are the various fields that are related to the student? Name, branch, roll number, gender, date of birth, address, और बहुत कुछ रहेगा. So that is the data. Then function declarations. तो अभी हमने discuss किए, there are 4 functions to register, to fill registration form, to fill exam form, give exam, to see result, और भी जो आप बाकी activities perform करते हो. So for every activity you have to create a function. Okay, and all that functions you are defining outside of the class. And once you have defined all the functions, then there is a main. In main, first you are creating the object. Now how is the object creation? This is student, your class name, and then s of 60, क्योंकि हमें कितने लोगों के लिए डेटा एंटर करना है? 60 लोगों के लिए। और फिर आप वही फंक्शन कॉल करोगे, फॉर लूप लगाओगे i से लेके 0 से लेके 60 तक, और फिर s of i डॉट टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टू फिल एग्जाम फॉर्म, टू फिल, या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि लाइक विच एक्टिविटी यू वांट टू परफॉर्म। फिर आपका कौन सा करना है, पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, तो वो फिर बोलेगा पहला करना है, तो आप वहां पे वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करोगे, फिर पूछोगे आपको कौन सा करना है। तो इन दिस वे वी आर इन अ पोजीशन टू डेवलप the real problem, we are going to find a solution for the real time problems over here with the help of this
C++ प्रोग्राम. So this is the general structure. अब ये जनरल स्ट्रक्चर हम बाद में देखने वाले, तो अभी आप देख लो, मैं उसके थ्रू भी बताऊंगा अच्छे से. तो ये हो गया आपका क्लास डेफिनेशन, फिर ये हो गई आपकी फंक्शन डेफिनेशंस, और फिर आपका ये वाइड मेन, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड फंक्शन कॉल्स. अब आई टोल्ड यू दैट योर एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट विद अ मेन वन. अब मेन कहाँ पे आपका सबसे नीचे है, तो ये हो गया बॉटम. तो यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन होने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से फिर एक 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 आपका एग्जीक्यूट होगा और फिर से वहां पे जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि बॉटम से हम कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. बॉटम से कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. सो दिस इज योर क्लास नेम. नाउ स्टूडेंट डोंट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस. This class is a virtual entity, and what we are going to mention in a class, this is again required. What we are going to mention, what is the data that will be represented by a student, and what are the different functions that have to be executed with the help of this object. Okay, so object is a real time entity, क्योंकि ये class का physical existence नहीं है. अगर आप क्लास का देखोगे तो ये क्लास क्या है, वर्चुअली सिर्फ रिप्रेजेंट करता है. अब मैंने बोला स्टूडेंट, तो आपके आंखों के सामने कौन सा स्टूडेंट आ रहा है, कोई भी नहीं. मैंने बोला बर्ड, तो कौन सा बर्ड आ रहा है, ठीक है, वो अलग चीज है कि मुझे पैरोट अच्छा लगता है तो मेरे आंखों के सामने पैरोट आया. या फिर मैंने बोला कि एक्ट्रेस, तो मुझे जो फेवरेट है वही मेरे आंखों के सामने आएंगे. लेकिन मैंने एक्ट्रेस बोला तो बेसिकली कौन सी, वो मुझे पता नहीं है, बिकॉज एक्ट्रेस इज अ वर्चुअल एंटिटी. लेकिन अगर मैं कोई नाम लेता हूँ, सो दैट इज अ फिजिकल एंटिटी, एंड दैट नेम विल बी गिवन बाय दिस ऑब्जेक्ट. मैंने बोला स्टूडेंट, लेकिन कौन सा रोल नंबर 24, तो तब जाके वो 24 क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट है. रोल नंबर 24, स्टूडेंट रोल नंबर 24 फिजिकली एग्जिस्ट. लेकिन मैंने बोला ओनली स्टूडेंट, so student do not exist, it is just only a virtual entity. Yes, I can say student can have a name, student can have a branch, student can have a roll number, student can have a gender, student can have a date of birth, student can do this kind of a functions. Okay, जब लेकिन मैं बात करूंगा रोल नंबर 24 की, यस, रोल नंबर 24 हैज अ नेम लाइक आकांक्षा, जो भी रहेगा उसका जेंडर फीमेल है, ये है, वो है, वो है, वो है, because roll number 24 is a runtime entity that is having a physical existence. Okay, so I hope general structure is clear to you. Object, ये है आपका क्लास का नाम, स्टूडेंट जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर. वहां पे हम स्ट्रक्ट लिखते थे, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट स्टूडेंट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब S60 बनाना है आपको, या फिर आपको दो ही बनाने हैं, S1 बनाना है या फिर S2 बनाना है, कितने बनाने, दैट इज योर चॉइस. ओके, थर्ड कंसेप्ट इनहेरिटेंस, या यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्रूट. फ्रूट इज अ क्लास, और फ्रूट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, तो मैंगो है. सो हियर फ्रूट इज अ क्लास एंड मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फ्रूट. तो मैंगो किसका टाइप हो गया, फ्रूट का टाइप हो गया, बिकॉज फ्रूट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. हमने क्या बनाया, फ्रूट करके क्लास बनाया. तो ये फ्रूट क्या हो गया, जैसे हम स्ट्रक्चर में स्टूडेंट बनाते थे, तो स्टूडेंट क्या हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया. वैसे फ्रूट क्या हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया. फैन क्या हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया. लेकिन ओरिएंट, तो ओरिएंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फैन कौन से कंपनी का है, ओरिएंट का फैन है, PSPL का फैन है, फिर आपका अलग अलग कंपनी है, क्रॉम्पटन का है. सो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए. ओके, सो द क्लास कैन हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज नॉट लाइक दिस कि लाइक एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा. फिर इनहेरिटेंस है. व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance means inheriting the future from the parent class to the child class, or one class can acquire the properties of the another class, or one class means the child class can acquire the properties of the parent class. That is called as a inheritance. अब inheritance का एग्जांपल देंगे कि लाइक देखते हैं आजकल जेनेटिकली कुछ फीचर्स पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं. जैसे कोई डिसीजेस आती है, जैसे हार्ट वाली डिसीज हो गई, ब्लड शुगर हो गया, तो हम बोलते हैं ना जेनेटिकली है करके, मेरे दादा को भी थे, मेरे पापा को भी है, और मुझे भी है, तो जेनेटिकली. So that concept is here inheritance, and with the help of this inheritance we are going to avoid the rewriting of the code. ये inheritance से क्या हो रहा है कि जैसे अगर मेरे ग्रैंडफादर की 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, तो मुझे अलग से 400 करोड़ की बनाने की जरूरत नहीं है. मुझे 400 में क्या करना है, एडिशन करते जाना है, मुझे नए से 400 बनाना नहीं है. अगर हमारा खुद का घर है और मैं मेरा इकलौता बच्चा हूँ मेरे माता पिता का, तो मुझे और एक घर लेने की जरूरत नहीं है, या ले सकता हूँ, बट दैट इज माय इन्वेस्टमेंट.
लेकिन मेरे पास अगर एक घर है तो दूसरा घर बनाने की जरूरत नहीं है रहने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पेरेंट्स से मुझे वो घर मिला है, सो दैट इज अ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे और वही फंक्शन हम क्या करेंगे, नीचे जो रहेंगे उनको वो सप्लाई करेंगे या प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो रीराइटिंग वाला है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अवॉइड हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि लाइक फीमेल है, ओके, polymorph, the definition of polymorphism is one form multiple interfaces। polymorphism का बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि वन फॉर्म मल्टीपल इंटरफेसेस। जैसे हम क्लास में आते हैं, ओके, इन क्लास यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, ओके, क्लास में बैठे हैं, जब टीचर खड़ा है वहां पे तो यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। टीचर क्लास के बाहर गया, यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स, ओके, और वही आप क्लास में से बाहर गए ग्राउंड के ऊपर या फिर और कहीं पे कैंटीन में गए, देयर यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ फास्ट फ्रेंड्स। वही आप कॉलेज में से घर पे गए, सो देयर यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर, ओके, और वही आप और कहीं पे गए तो माइट भी, अगर आप आपके घर में बहुत बड़े होंगे तो यू आर गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अंकल और आंटी। हो सकता है आपके घर में आप बहुत छोटे हो और आपका भाई बड़ा, बहुत बड़ा, उसके बच्चे हो गए तो आप तो वो बच्चा अंकल या आंटी बोलेगा, ओके। सो दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, माना एक ही फॉर्म है लेकिन वो क्या कर रहा है, अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। जस्ट लाइक अवर मदर, mother is playing a role of mother but she is also playing a role of wife, she is playing a role of sister, she is playing a role of daughter in law, she is playing a role of sister in law। तो ऐसे बहुत सारे एक ही क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ड्रॉ, अब क्या क्या ड्रॉ करो, ट्रायंगल भी ड्रॉ करो, रेक्टेंगल भी ड्रॉ करो, सर्कल भी ड्रॉ करो, लेकिन है क्या, एक ही है ड्रॉ। लेकिन ड्रॉ से मैं क्या क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, रेक्टेंगल भी, सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में, अभी आप बोलोगे कि सर तो ये तो ठीक है बोलने के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स है या फिर जो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे हमने बोल दिया ड्रॉ करके फंक्शन, तो अगर ड्रॉ में आपने अगर वहां पे 4 वेरिएबल्स दे दिए, ओके, 4 कौन से वेरिएबल, अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कितने वेरिएबल्स लगेंगे आपको, आपको लगेगा लेंथ एंड ब्रेथ लगेगा, सिर्फ वहां पे 2 ही लगेंगे। और वही अगर ट्रायंगल करना है तो आपको वहां पे आपको फिर से 2 लगेंगे, और वही अगर आपको सर्कल करना है तो एक ही लगेगा, क्योंकि आपको रेडियस लगेंगी। सपोज एक ही वहां पे ड्रॉ में अगर आपने एक ही वैल्यू पास कर दी तो आपका कंपाइलर क्या चेक करेगा कि भाई इसको क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। वही अगर आपको ड्रॉ में आपने 2 वहां पे दे दिए तो आपको क्या ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। वही आपने ड्रॉ में 3 दे दिए तो क्या ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल का हाफ बी इंटू एच इंटू वाला फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल का वो 3 वेरिएबल वाला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ड्रॉ में आप क्या पास कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि क्लास में टीचर खड़ा है तो स्टूडेंट, टीचर क्लास के बाहर गया तो फ्रेंड्स, वही आप कैंटीन में गए या ग्राउंड पे गए तो फास्ट फ्रेंड्स, वही आप घर पे गए तो ब्रदर और सिस्टर या फिर बेटा या बेटी, ये सब रोल वहां पे प्ले करते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे भी वैसे है, आप फंक्शन में क्या पास कर रहे हो और कितने पास कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है। अगर ड्रॉ में रेडियस पास की या फिर एक ही वेरिएबल पास किया तो सर्कल होगा, अगर आपने इसमें 2 पास किए तो रेक्टेंगल होगा, और अगर आपने इसमें 3 पास किए तो यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द ट्रायंगल। Even in C++, we are in a position to overload the operators. That is the concept of polymorphism, overloading operators, function overloading, operator overloading. अब ये जो मैंने concept बताया, that is called as a function overloading. But we are having another concept that is operator overloading. Means the operators that we can use for the normal purposes, but along with that we can use for the different purposes, like plus है तो plus से हम लोग क्या कर सकते हैं, plus can be used to perform the addition between 2 integers, or plus can be used to perform the addition between the float and integer or 2 floats। plus से हम 2 integer की addition कर सकते हैं, integer float की भी कर सकते हैं, और float float की भी कर सकते हैं, okay। but using a plus we can in a position
टू ऐड द टू स्ट्रिंग्स। जैसे अगर आपकी पहली स्ट्रिंग होंगे शिव, आपने कर दिया प्लस और आपने कर दिया शक्ति, तो इसका आउटपुट आएगा शिव शक्ति। So that plus will get overloaded over here. Using plus, normally we will perform the addition between the integers and floats. But here, using the plus, you can do the string addition or the joining of the two strings. तो ऐसे बहुत सारे operators हैं that can be overloaded in a C++ language that you will come to know. Dynamic binding. Okay, dynamic binding means when your program is at the execution level. Means you are on your console, माना जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और आपका कंसोल माना जो ब्लैक स्क्रीन जो रहता है, एंटर द वैल्यू फॉर एन और ओ रहता है. सो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन which function you have to call, that can be find out, or that we can do with the help of this C++ language, that is called as a dynamic binding. Binding refers to the linking of a procedure call to the code to be executed in response to the call. Means जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन we are informing to the compiler that I have to execute this function. नॉर्मली हमारा कैसे होता है, यहाँ पे आता है s1 डॉट registration, s2 s1 डॉट एग्जाम फॉर्म, s1 डॉट गिव एग्जाम, s1 डॉट शो रिजल्ट. तो ये 1 2 3 4 हो गया और यही उसी सीक्वेंस में क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं. पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा एग्जाम फॉर्म हो गया, तीसरा एग्जाम दिया और चौथा शो रिजल्ट हुआ. तो ये तो हमारा बराबर सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो गया. लेकिन डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यू आर इन्फॉर्मिंग टू द कंपाइलर दैट आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन ड्यूरिंग execution during runtime, and that is called as a dynamic binding. That is called as a dynamic binding. Means during runtime we are informing to the compiler that we have to access or we have to execute this procedure or this function. ये देखो यहाँ पे लिखा है linking of a procedure call to the code to be executed in response to the call. That is called as a dynamic binding, or it is also called as a late binding. It is also called as a late binding. Means that a code associated with a given procedure call is not known until the time of call at runtime. And run time पे प्रोग्राम जा रहा है तब तक पता नहीं है कि भाई कौन से फंक्शन को कॉल करना है. Then message passing. Message passing means you have to pass some information from one function to another function, and that we can do with the help of the objects. Okay, that we already seen in the differentiation. And object-oriented programming consists of the set of objects that communicate with each other. The process of programming in an object-oriented language involves the basic steps: creating classes that define their object and their behavior. Okay, creating object from the class definition, that is the same thing, and establishing communication among the objects. Okay, I told you that whenever the communication needs in between the functions, so that in between the objects, so that we can do with the help of the functions. Okay, then there is the another concept, that is a data abstraction and encapsulation. Data abstraction means whatever the essential features are there that are putting at the front. Means whatever the essential features are there with respect to the user, that only shown to the user, and whatever the background working is there, that should be completely hide out from the user. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो एटीएम मशीन पे सिर्फ आपकी जो काम की चीज है वही आपको दिखती है. माना आपको बोला कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ, सो यू सेड 5000. So after that you are going to put your PIN number, and whatever the cash is there, that will be calibrated by the machine and it will be hand over to you. लेकिन उसके अंदर में अब ये तो आपकी काम की चीजें थी, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है. जो आपका काम का है, आपको कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है, एंटर योर पिन नंबर, दैट इज ऑफ योर कंसर्न पार्ट. लेकिन कौन से कप्पा में से वहां पे जो कंपार्टमेंट है 500 वाला, 100 वाला, 200 वाला, वो आपको नहीं दिख रहा है कि मशीन 500 के नोट उठा रही है या 200 के उठा रही है या 100 के उठा रही है. तो वो वाला जो पार्ट था वो आपके काम का नहीं था, वो वाला पार्ट आपके काम का नहीं था, तो उसने आपको नहीं दिखाया. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी वही होता है, जो आपके काम की चीज है वो आपको दिखाई जाती है, और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग है वो आपको वहां पे नहीं दिखाई जाती. तो इसमें C++ में भी ऐसा ही है कि हम यूजर को क्या करते हैं कि उसके जो काम की चीजें वो दिखाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उसके पीछे क्या क्या हो रहा है प्रोसेसिंग, दैट वी आर नॉट showing to the user. So abstraction refers to the act of representing essential features without including background details or the explanation. Or encapsulation means the wrapping up of a data and function into a single unit is known as a encapsulation. तो object जो बनता है, तो object किससे बनता है, data और function से बनता है. Object is not a standalone unit.
but object is a wrapping of data and function. Basically, the wrapping of data and function into a single unit is known as an encapsulation. Data is not accessible to the outside world, and only those functions wrapped in the class can access it, called data hiding or information binding. माना जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट में दो चीज है, एक पहला डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, जैसे ये, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट S1। तो ये S1 में यहाँ पे क्या आएगा, ये है डेटा, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन, and this complete entity is called as object, data and function, and the wrapping of data and function into a single unit, that is called as a encapsulation। जो डेटा और फंक्शन को हम जो सिंगल यूनिट में जो रैपिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन। जैसे चॉकलेट रहता है, चॉकलेट के ऊपर रैपर रहता है, तो चॉकलेट रैपर के अंदर क्या कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया। जैसे आपको पता है कि मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो कैप्सूल रहता है, और कैप्सूल के अंदर उसका ड्रग रहता है, तो दैट इज अ एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे भी एनकैप्सुलेशन हमने किसका किया, डेटा और फंक्शन को एनकैप्सुलेट किया, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन। और ये जो सिंगल यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हियर इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेटा है C++ में, दैट इज नॉट विजिबल, मींस लाइक there are three specifiers, that is called as access specifiers here, public, private and protected। तो ये तीन स्पेसिफायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मींस कौन सा डेटा पब्लिक करना है, कौन सा डेटा प्राइवेट रखना है, कौन सा डेटा प्रोटेक्ट करके रखना है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वो कैटेगराइजिंग आवर डेटा with respect to this specifiers, public करना है, private करना है, या फिर protected करना है। Okay, so these are the concepts। So there are around 8 concepts। First is object, that is a runtime entity class। Using class, we are going to represent object. This is a blueprint of object। These objects are going to physically exist. This classes is having a virtual existence। Inheritance, inheriting the features from the base class to the derived class, or from the parent class to the child class। माना पापा के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो चाइल्ड की क्लास जाएंगे 200 करोड़, और उसके बाद चाइल्ड अपने भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएगा, तो 300 करोड़ हो गए। तो यही पे भी वैसा ही है, पहला क्लास रहेगा, पहले क्लास के पास दो फंक्शन है, और उसके उसी क्लास से हमने दूसरा क्लास बनाया, ये हमारे तीसरा यूनिट का है, ये इनहेरिटेंस कंसेप्ट। तो हमने पहला क्लास बनाया, पहले क्लास में दो फंक्शन है, और उसी क्लास से हमने दूसरा क्लास बनाया, यानी पेरेंट से बच्चा बना। तो बच्चे को खुद की प्रॉपर्टी अभी बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बाप की जो 200 करोड़ के जो दो फंक्शन थे उसको मिल गए, अभी वो खुद बनाएगा। तो उसने दो बनाए, तो उसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। जैसे मेरे पापा के पास एक कार है और मैंने 2 कार ले ली, तो फिर मेरे पास कितने हो गई, 3 कार हो गई, क्योंकि पापा की भी कार किसकी है, मेरी है। तो कितने कार हो गए मेरे पास, 3 कार हो गई। तो इसी तरीके से ओके। सो दीज आर द बेनिफिट्स of the object oriented programming। Simplicity, here using the object we are in a very good position to implement the real world problems, so very simple to implement the object oriented program। Modularity means we can divide the object, ये जो ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे C++ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, whatever the task are there, that task we can divide it into the form of the functions। okay, modifiability means like we can easily modify, or we can easily do the changes in the programs, because whatever the program is there, that program can be divided into the modules, and that's why we can easily do the changes in the program। जैसे आप C का प्रोग्राम देखोगे तो आपका C का प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए C को भी क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से C++ को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मॉड्यूल्स। ओके, देन एक्सटेंसिबिलिटी, अगर आपको कोई फीचर ऐड करना है या फिर कोई चीज को आपको अपग्रेड करना है, तो दैट आल्सो यू कैन डू इजीली इन द C++ लैंग्वेज, क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, reusability, inheritance is going to provide this feature, that is a reusability। Objects can be reused into the different programs। Maintainability, objects are maintained separately, which makes it easy to locate and correct problem।
Flexibility, polymorphism enables an object to behave differently according to the context. अब ये जो है reusability, ये inheritance provide कर रहा है, flexibility, polymorphism provide कर रहा है, क्योंकि जिस चीज को जिस तरीके से यूज करना है, so that we can do with the help of polymorphism. Means polymorphism flexibility provide कर रहा है. Security, so here due to encapsulation or data hiding, the data is insulated from the external access. This avoid the misuse of the data. So all these are the benefits of the C++ language. That is simplicity provide कर रहा है, modularity provide कर रहा है, modifiability means we can easily modify our program. We can divide the programs into the forms of procedures. Extensibility, we can add the new features or we can delete the features. Reusability, whatever the code is there or whatever the objects are there, that we can, the same objects we can use for the new programs. Maintainability, objects are maintained separately. Flexibility, for this we can use the polymorphism. Security, for this we can use the encapsulation or data hiding. Okay, then 4 features यहाँ पे है, ये अलग अलग चीजें हैं सब कुछ. Okay, ये जो हमने देखा था डिफरेंस देखा था, applications are different, keep in mind, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में कि लोगों को एप्लीकेशन पूछे तो कंसेप्ट लिख के रखते हैं, कंसेप्ट पूछे तो बेनिफिट्स लिख के रखते हैं, और अगर बेनिफिट्स पूछे तो फीचर्स लिख के रखते हैं. Everything is different. These are the applications, these are the features, these are the benefits, and these are the concepts. ये concepts है. Okay. So what are the features? तो features में भी वही चीजें हैं, most probably concept वाली तो एक ही करके देखेंगे हम. Object-oriented programming ties data closely to functions that operate on it. अब यहाँ पे functions के ऊपर कौन operate कर रहा है? Data operate कर रहा है. So here in object-oriented programming क्या कर रहा है? tie कर रहा है data को closely with the functions that operate on it and protects it from accidental modifications from outside functions by giving security to data. So here in object-oriented programming, we are providing more security to the data such that whatever the data that will be used in the functions that can be protected from the outside functions. Okay. तो यहाँ पे कैसा है? और एक चीज जैसे मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया कि विद द हेल्प ऑफ C++ वो आर डूइंग और वो कंप्लीटली वर्किंग ओवर द रियल टाइम प्रॉब्लम्स. जैसे अगर हम बैंक के लिए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर बैंक के अंदर तो कितने सारे फंक्शंस रहते हैं, टू ऐड अ कस्टमर, टू डिलीट अ कस्टमर, विथड्रॉ है, फिर उसका चेक बुक इशू करना है या फिर डीडी इशू करना है, ऐसे तो कितने सारे फंक्शंस रहते हैं. तो अगर वहां पे कुछ या फिर कोई वल्नरेबिलिटीज रहती है या फिर कुछ हैकर्स रहते हैं, तो हैकर को क्या नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मेरा कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है या SBI है, तो उसके कुछ फंक्शंस है और उसमें कुछ डेटा है, तो मुझे उसको इस तरीके से सिक्योर करके रखना है कि बाहर वाले लोग या बाहर का कोई भी फंक्शन. अब जो हम बोलते हैं कि भाई वायरस आया, तो वायरस माना क्या कोई ऐसा वायरस है क्या? वायरस इज नथिंग बट अ फंक्शन. वायरस क्या है? एक फंक्शन है, और वो फंक्शन को क्या करते हैं वो सॉफ्टवेयर में या फिर उनका जो ये रहता है exe फाइल. अब फंक्शन भी क्या है? फंक्शन की हम exe फाइल बना सकते हैं, और उस exe फाइल को अगर हमने SBI के सॉफ्टवेयर में डाल दिया और उस exe में हमने कुछ लिख दिया कि भाई उसके ये फंक्शन क्या करना है, करप्ट करना है या डिलीट मारना है उस exe में, और उस exe को क्या कर दिया, कोई फंक्शन के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया कि अगर इसने ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो उसी के साथ ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, exe. जैसे आप क्या करते हो, कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करते करते क्या होता है, हमको पता भी नहीं चलता, और हम कोई नया ओपेरा ब्राउजर हो गया या फिर और कोई ब्राउजर हो गया ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि भाई कैसे हो गया करके. ओके, जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ सम मिसस्पेल्ड बटन, योर ओपेरा और सम अनदर ब्राउजर और सम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स विल गेट इंस्टॉल्ड इन योर मशीन. तो ये भी वही है, ये भी क्या है, वही है. मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिक्योर आवर डेटा that will not get corrupted by the outside functions. Then OOP treats data as a critical element in programming and does not allow it to flow freely around the system. वो भी है, more security is provided to data so that it will not move freely around the system. In OOP, problem is divided into number of objects and builds data and function around these objects. क्योंकि functions are finally accessed only using the objects, otherwise function cannot be accessed. Data of an object can be accessed only by function associated with the object. और ये ऑब्जेक्ट को भी कौन एक्सेस कर सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही क्या है, डेटा बैठा हुआ है. ऑब्जेक्ट में क्या है, मैंने बताया आपको यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में क्या है, डेटा बैठा हुआ है. ये डेटा कब एक्सेस होगा? ये डेटा तभी एक्सेस होगा जब ऑब्जेक्ट कहेगा, या फिर ये कब एक्सेस होगा डेटा आपका, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कोई फंक्शन को एक्सेस करेगा. और जब ऑब्जेक्ट फंक्शन को एक्सेस करेगा, ओनली दैट टाइम this data will get manipulated, otherwise it is not possible. So whenever you want to manipulate the data, that you can do only by accessing the function with the help of the object.
Then objects may communicate with each other through the function that I told you. Emphasis is on data rather than procedure that I told you. New data and functions can be easily added whenever necessary. That is very easy in C++ language. Even it is also easy in C language. OOP follows bottom-up approach in program design. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच हो रहा है. मींस ऊपर में आप जितने फंक्शन ऐड करना है उतने करते जाओ, सिर्फ आपको फंक्शन कॉल कहाँ पे करना है, एक मेन में कर देना है. सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें और एक रह गया ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स तो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर्स है करके, बट यहाँ पे एक दो ही ऑपरेटर ये डिफरेंट है, दो तीन ऑपरेटर डिफरेंट है. एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है. तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने सी में देखा है या नहीं देखा है, डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे अभी. तो ये और ए ऐसे दो कोलन्स, these are called as the scope resolution operator, and what is its use, that I will tell you later. Okay, this is called as a scope resolution operator. Okay, उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स. तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स दो है, एक न्यू है, दूसरा डिलीट है. यूजिंग द न्यू यू आर गोइंग टू अलोकेट द मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट, एंड यूजिंग डिलीट यू आर गोइंग टू रिलीज द मेमोरी. दैट हाँ, और एक चीज, बहुत सारे लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट बनाए थे, तो मिनी प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लश करके फंक्शन यूज किया था. तो ये फ्लश क्या करता है, जितने भी मेमोरी वेरिएबल्स ने होल्ड करके रखी है, अगर आपको सब रिलीज करना है, दैट टाइम यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस फ्लश फंक्शन. So in the same way, flush you are having a delete. Using new you are going to allocate the memory for the object, and using this delete you can deallocate the memory that you have been allocated for the object. So these are the two memory management operators over here. Memory dereferencing operators है यहाँ पे. अब memory dereferencing operators थोड़े अलग है. Memory dereferencing operators. मेमोरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स ये है, डॉट पहला ऑपरेटर डॉट है, फिर डॉट स्टार है, फिर एरो है, फिर एरो स्टार है, और एक स्कोप रिजोल्यूशन स्टार. तो ये अलग अलग है, डॉट, डॉट स्टार, एरो, एरो स्टार और ये स्कोप रिजोल्यूशन स्टार. दीज आर द मेमोरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. बेसिकली ये तीन ही है, लेकिन ये भी हम उसमें ऐड कर देते हैं. तो दिस थ्री आर द मेमोरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स. मेमोरी डीरेफरेंसिंग मींस जो हमने स्ट्रक्चर में देखा कि भाई स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसका पॉइंटर बनाते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में पॉइंटर बनाना है, या फिर राइट साइड वाले का पॉइंटर बनाना है. जैसे हमने कल देखा कि भाई कोई हम कॉल करते, जैसे s1 डॉट पैक करते हैं, तो ये डॉट है. डॉट माना लेफ्ट साइड का भी आपका नॉर्मल है और राइट साइड वाला भी आपका नॉर्मल है. अगर आपने यहाँ पे डॉट स्टार कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट साइड वाला क्या बन गया, पॉइंटर बन गया. जिधर में स्टार है वो क्या बन गया, पॉइंटर बन गया. और वही आप यहाँ पे एरो लगा दिया, माना ये लेफ्ट साइड का क्या बन गया, पॉइंटर बन गया. तो ये मैं बाद में चीजें बताऊंगा, सिर्फ अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसा रहता है. तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये दो कोलन, कोलन है, सेमी कोलन नहीं है, दो कोलन है. मेमोरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कौन से, डॉट, डॉट स्टार, एरो, एरो स्टार, ये हमारी मेमोरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स है. ओके, सो दिस इज all about the differentiation between object-oriented programming, procedure-oriented programming, applications of object-oriented programming, features of object-oriented programming, then the benefits of the object-oriented programming, and then the concepts of object-oriented programming. तो इस फाइल में आपको C++ का सब कुछ मिल जाएगा. फिर हमने जनरल स्ट्रक्चर की बात की थी, तो जैसे C में रहता है वैसे पहले हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर मैंने बोला था आपको क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन, फिर मेन फंक्शन एंड द मेथड डेफिनेशन सेक्शन. तो हमने क्या कर दिया, मेथड डेफिनेशन सेक्शन ये इसके पहले लिख दिया था, मेन फंक्शन क्या फाइल. यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका क्लास. सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे हेडर फाइल रहेंगी करके,
हेडर फाइल डिक्लेरेशन, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन अगर कोई ग्लोबल डेटा है, अगर आपको कोई डेटा ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद एक क्लास डेफिनेशन है, उसके बाद ये फंक्शंस डेफिनेशंस है, और उसके बाद ये मेन है। तो वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हेडर फाइल डिक्लेरेशन, उसके बाद ग्लोबल कोई डेटा आपको डिक्लेयर करना है तो उसका, फिर एक क्लास डिक्लेरेशन, फिर मेथड डेफिनेशन सेक्शन, फिर ए मेन फंक्शन, और मेथड डेफिनेशन सेक्शन ऑलरेडी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो या इसके नीचे भी लिखा तो भी नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम एंड दिस इज द डिक्लेरेशन कि भाई क्या क्या हो रहा है करके। ओके